Friends, today we have a very interesting session coming up because a lot of you have asked me whether cracking CFA level 1 exam without maths background or with weak maths, is it possible or not? So friends, today in this session, we are going to deep dive into this critical fear which most of the aspirants have कि सर finance तो करना है but सर maths से बहुत फटती है. This is, at the heart of lot of aspirants' mind, right? And let me just nail this fear for you today. Friends, we'll cover 3 key aspects in this session. Number 1, we are going to cover how critical is maths in CFA level 1. Number 2, we are going to cover should you be worried if you do not have a maths background, कि कितना डरना चाहिए भाई. Number 3 is how can you test if CFA is really for you or not, right? Because the sum total of 1 and 2, कि एक बार आपको criticality पता लग गई and then you know that how worried you should be about maths background. Then I will today do a live demo through which you will very objectively answer the question. आर या पार की लड़ाई आज कर लेंगे, जहां पर आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या CFA is for you or it is not for you, and it is fine. अच्छा है ना. आज अगर क्लैरिटी लग गई कि it is not for you, then also it is great. अगर ये क्लैरिटी लग गई कि यार yes it is for me, तो जोर लगा के पढ़ेंगे ना यार, फिर रोज डर डर के नहीं मरेंगे, right? So let's get started, friends. Right? Before we get started, friends, also remember that at the end of the session, आपकी कई सारी queries I have answered today, right? So that will also give you a very good perspective. So do watch the video till the end. Also, as always here, I request you to like, subscribe and share this video so that more people can benefit out of it. And also through your subscription, you will never miss out on any such insight in the future. So friends, question number 1, how critical is maths in CFA level 1? Remember friends, CFA level 1 has 10 topics. Quantitative methods, जहां पर maths की पढ़ाई होती है, that topic is topic number 1, which we cover in our lecture series as well, which is called quantitative methods, and it has a 10% weightage. That's it. खाली 10% weightage है. तो अब तो आपके चेहरे पे जरूर से मुस्कुराहट आनी चाहिए कि अच्छा सर, थैंक गॉड सर. तो 100 में 10 नंबर का ही क्वेश्चन जो है मैथ्स से आएगा, बाकी सब आउटसाइड मैथ्स आएगा. ठीक. सो आई होप दिस शुड गिव यू लॉट ऑफ कंफर्ट ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ मैथ्स. But there is one small caveat, friends, which you should know about CFA level 1. That even though, friends, it has 10% weightage, which tells you कि 90% में तो quant सही नहीं, math सही नहीं, 90% syllabus, right? But friends, unlike our Indian exam, जहां पर कि जो topic आपको नहीं आता था या जो topic you felt very uncomfortable with, you left it all together and you said यार इस topic में मैं 0 marks लाऊंगा and I will score highly in the other topics. That attitude with CFA will not work. Why? Because friends, in CFA, there is something which is called thumb rule of 60. What is this thumb rule of 60? Thumb rule of 60 का मतलब है दोस्त कि in all the 10 topics, you should have at least 60% marks. इसका मतलब है that even though quantitative methods is just 10% of the total curriculum, quantitative methods को आप पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकते हैं. You cannot let go quantitative methods and say कि चलो यार remaining 90% I will score very well and to hell with maths. That will not happen, right? And hence in maths also you need to score decently well. At least 50-60% number आपको उसमें लाने पड़ेंगे, which is out of 10%. say total 180 questions are there in CFA level 1. उसमें से 18 questions out of 180 questions, you will get 18 questions in quantitative methods. In that 18 questions, at least 8-9 questions you need to get right. So out of 180 questions, maths के at least 8-9 questions you need to get right. That is how you should think about it, right? Why, friends? This also you should know. And then I go to point number 2 is, friends, because CFA always takes lot of pride. CFA Institute takes lot of pride कि दोस्त मेरे जो पढ़े हुए बच्चे हैं, मेरे जो पास हुए हुए बच्चे हैं, उनको तो holistic coverage finance की पता है, which means that they just don't know about one part of finance. They know end to end all parts of finance, and that is their pride, that is their status symbol, that is their brand. That tomorrow, कल को मेरे जब बच्चे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में जाए, बड़े बड़े फाइनेंशियल फॉर्म्स में जाए, तो ये ना बोलेंगे सर हमें तो मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, we did rest very well and we we flunked the maths paper and then also we passed because sir law of averages में तो एवरेज नंबर ले आए आप तो पास हो जाए. यही होता था हमारे इंडियन एग्जाम में कि जो टफ टॉपिक है उसको छोड़ दीजिए, बाकियों में अच्छा कर लीजिए तो नेट आपका एक एवरेज मार्क्स आ जाता था. CFA focuses very highly on you scoring at least 60% marks in each of the topic. That is number 1, which has to be clear. So while yes,
द टॉपिक इज नॉट ग्रेट, इट इज जस्ट 10%, बस उस 10% में एटलीस्ट आपको डिसेंट तो स्कोर करना पड़ेगा। ओके, अब पार्ट नंबर 2, दैट हेंस शुड यू बी वरीड कि भाई मेरा तो सर मैथ्स ही बैकग्राउंड नहीं है सर, अब क्या करें, या सर मेरे मैथ्स तो था सर, बड़ा बड़ा रो पीट के सर पास हुए, अब क्या करें। तो फ्रेंड्स अगेन अंडरस्टैंड दैट यू शुड नॉट बी वरीड एट ऑल। वाई? बिकॉज वॉट वॉज डिफिकल्ट इन मैथ्स, थोड़ा सोच कर देखिए, अगर आपने मैथ्स ली थी और इफ यू हैव नॉट टेकन मैथ्स, व्हाट वरीड यू इन मैथ्स स्पेशली इन 11th एंड 12th? सोच के देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, राइट, algebra, right? All these things, limit theorem, differentiation, integration, etc. All this worried you, right? Fikr not those. This is not an IIT ka exam. This is not a mathematical institute ka exam where you need to know maths to the core. So hence all these differentiation, integration, limit, algebra, trigonometry is not asked. The maths which is taught to you in CFA level 1 or which is part of the CFA level 1 curriculum is super logical. एंड ये मैं आपको लग रहा होगा कि नहीं सर आप तो महान आदमी है सर, आपने तो इतना पढ़ाई किया हुआ है सर, हर आईआईटी में जाने वाला व्यक्ति यही बोलता है कि नहीं यार मैथ्स तो बहुत सिंपल है सर, आपकी बातों का तो भरोसा नहीं करना चाहिए। यू आर राइट, मेरी बातों का भरोसा मत करिए। यू आर राइट। वाई? बिकॉज दोस्त मैंने तीनों लेवल्स ऑफ सीएफए निकाले हुए हैं, बट मेरा तो मैथ्स बैकग्राउंड था। अब क्या करें भाई, इतिहास में जाके मैथ्स बैकग्राउंड को हटाकर फिर तो सीएफए नहीं दे सकते ना। तो व्हेन आई अपीयर्ड सीएफए लेवल 1, आई हैड मैथ्स बैकग्राउंड, आई हैड डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो मेरा मैथ्स यार बाय डिजाइन मेरे बैकग्राउंड से, मेरे पेडिग्री से अच्छा था। तो मेरी मत सुनिए, नितिन जो मेरे कंटेंट क्रिएटर है उनकी सुनिए। वो अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर में एक वीडियो डाल रहे हैं, वेयर दैट स्मॉल वीडियो, यूट्यूब वीडियो इज माय इंटरेक्शन विथ वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हु रिसेंटली passed CFA level 1 in his first attempt, and he had scored only 45% marks in his maths exam. He is a commerce student, doesn't have engineering background. He scored only 45% marks in his class 12th. तो बड़ी मुश्किल से भाई वो अपना वेदांत जो है, जो स्टूडेंट है जिसका आप यूट्यूब वीडियो देखेंगे, वो बड़ी मुश्किल से उसने पास किया एग्जाम। ही ओनली हैड 45% मार्क्स। तो यार उसका भरोसा तो कर लीजिए, राइट। और अब आप बोलेंगे नहीं सर वो तो फिर 1 लाखों में एक बच्चा तो सर किसी में भी मिल जाता है सर, वो भी बात आपकी सही है। तो दोस्त टेक इट फ्रॉम मी, आई हैव बिन टीचिंग नाउ दिस कोर्स फॉर लास्ट 5-6 years and I have taught thousands of students, and trust me, a large majority of them do not have a maths background। क्योंकि आपको ये पता है, ये तो लॉ ऑफ एवरेजेस है कि कई बच्चे हमारे मैथ्स नहीं लेते, क्योंकि मैथ्स से हम बचपन में हम सबको डर लगता था। हम बोलते थे भूत भूत भूत, कोई नहीं डरता था। हमारे पेरेंट्स बोलते थे मैथ्स, तो हम डर जाते थे, यही होता था। तो मैथ्स से हम सबको डर लगता है। एंड ट्रस्ट मी, इफ आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द लास्ट 5-6 years, तो उसमें से 100-200 बच्चों को छोड़कर, मतलब 10-20% बच्चों को छोड़कर 80-90% बच्चों का, trust me, they did not have either the maths background or they were weak in class 11th and 12th, and they have done fantabulously well. So 3 critical reasons why you should not be worried if you did not have a maths background or had a weak maths background. Number 1, curriculum is super logical. If you take my video lecture series, I have taught this topic very logically through a lot of practical examples. So you will really learn the crux of maths rather than integration etc., जो कि part of curriculum नहीं है। Number 1. Number 2, please check out the YouTube video which is there as a card on top, where I have interviewed one of our mentees who recently qualified CFA level 1 in his first attempt. He had very poor marks in his standard 12th maths and he could do really, really well. Listen to him, see what he says. And number 3 are, take my data and my survey of last 1,000 students who I have taught. Not more than 10-20% of them had maths. Majority of them did not have a maths background. Okay. Now point number 3, कि सर बहुत बढ़िया समझ आ गया कि मैथ्स तो सर CFA लेवल 1 का छोटा सा एक 10% पार्ट ही है, डरना नहीं है सर, ऑल इज वेल, अच्छा लग रहा है। फिर आपने सर बताया कि सर आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका सर एग्जाम्पल देखा, बहुत अच्छा, और आप बता रहे हैं सर लॉजिकल भी है, मैंने भी सुन रखा है सर लॉजिकल है, तो इससे भी सर आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कंफर्ट। नाउ सर कोई टेस्ट है क्या सर जिससे तुरंत बड़ा ऑब्जेक्टिवली पता लग जाए कि CFA में हम जो बोलते हैं CFA इज वेरी लॉजिकल, आखिर ये लॉजिकल है क्या, किसको लॉजिकल बोलते हैं सर? लॉजिकल इज एन इंग्लिश वर्ड, कैन यू कन्वर्ट दैट इनटू सम पजल और समथिंग थ्रू विच आई कैन रियली ऑब्जेक्टिवली सी फॉर माई सेल्फ दैट इट इज लॉजिकल और नॉट? एकदम कर देते हैं दोस्त। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन टुगेदर, सी हाउ दिस क्वेश्चन विल चेक योर लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, यू कैन पॉज योर वीडियो हियर, रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. At the end of the video, I will give you answer of this question as well. What is the question? The question is, assume there is a boy whose name is Sameer Saxena. He lives in Surat, Gujarat and is currently preparing for CFA. ठीक है जी.
हिज फोन नंबर, एक फोन नंबर दिया हुआ 9899 567, तो उसको XX कर दिया, नहीं तो अभी हम XX नहीं करेंगे तो आप समीर सक्सेना को फोन करने लगे, इसीलिए XX कर दिया. एंड ईमेल आईडी इज samir2395@gmail.com. आपको बताना है समीर सक्सेना की एज कितनी है. क्लियर? सो आपको दिया हुआ है देयर इज अ बॉय, उसका नाम है समीर सक्सेना, सूरत गुजरात में रहता है, करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर CFA. उसका 10 डिजिट का फोन नंबर दिया हुआ है, थोड़ी डिजिट्स हमने मास्क कर दिया ताकि आप समीर सक्सेना को परेशान ना करें. एंड उसकी एक ईमेल आईडी दी हुई है samir2395@gmail.com. You have to tell me what is his age. Okay, so think over it. At the end of the video, we will answer this, and through that answer, अगर आपका आंसर मैच करता है तो you will get to know कि हाँ यार आपका लॉजिक चलता है कि. ठीक है जी, गुड. आगे बढ़ते अब Q&A सेशन. एज ऑलवेज यार, आई लव टू हियर योर क्वेरीज, तो प्लीज आप जरूर, मेंटरशिप फॉर्म आपके पहले कमेंट में इज देयर, ऑल्सो मेंटरशिप फॉर्म इज इन दी in the description, so you can go through that and can post your query. I will go through these queries in some of these videos. Okay, so Syed Muhammad Hassan, he is from Pakistan. Good to see our Pakistani friends also joining us. He says that he wasn't able to clear his first attempt in Feb 2024, right? He is already, by the way, he's a CFA level 3 candidate. So Syed, many congratulations to you. 2 critical levels of CFA you have already qualified, right? And you are planning to take this exam in the coming Feb, so wish you all the luck. You are also planning to switch your job. Yes, jab jago tab savera. Always you should upskill yourself and move forward. You are applying for a masters because you want to go abroad. Very good. And you have said that I have discussed IM jobs, but it is for Indians only. तो yes यार Syed, mostly यार I have a lot of flavor यार for Indian students, क्योंकि मेरा पूरा, मैं I am an Indian यार, मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई, मेरे peers और सबको यार इंडियन से, तो मैं इंडियन फ्लेवर आपको ज़्यादा दे पाता हूँ अपने वीडियोज़ में. यू आर राइट. बट सैयद, imjobs.com is just one of the sites, premier websites for jobs in India. आपके पाकिस्तान में भी जो भी टॉप की जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट है, आप उसमें जा सकते हैं, राइट? अब IM जॉब्स का क्या वहां पर इक्विवेलेंट है, दैट यू वुड नो बेटर, बट जो भी वहां पर जॉब वेबसाइट है वहां अप्लाई कर सकते हैं और वहां से जो है जॉब्स के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं. इंडियन बच्चों को सैयद भाई एक बड़ी अच्छा फायदा मिलता है, वो ये कि कई सारे, देयर आर लॉट ऑफ international banks like Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Nomura Bank, etc. They have their, they have their offices in India, especially in Bombay, Gurgaon, NCR region, etc. So what happens is a lot of Indian students get into these international firms. They work in India for some time, and then through IGP, in सारे companies में there is something called IJP, internal job posting. उसके थ्रू they then apply for job profiles or opportunities outside India, and that is one way through which they can go abroad without even doing master's degree. But आपके केस में, in case in Pakistan there are limited opportunities of international banks, या international banks की ज़्यादा branches नहीं है अगर पाकिस्तान के अंदर, तो the way you are proceeding, that is great. After CFA also you can go through LinkedIn like in India works very well. LinkedIn के थ्रू भी आप काफ़ी सारी जॉब्स इंटरनेशनली अप्लाई कर सकते हैं. बट आप जो मास्टर्स करके जाना चाह रहे हैं उसके थ्रू भी जा सकते हैं. इंडियंस को ऑफकोर्स ये फायदा हो जाता है कि बिकॉज देयर आर सो मेनी बैंक्स हु आर वर्किंग इन इंडिया, दे हैव देयर ऑफिसेज इन इंडिया, लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गो वाया दिस रूट, क्योंकि ये जो मास्टर्स का रूट है ये महंगा है और दूसरा इसमें समय लगता है. सो इंडियन स्टूडेंट्स कैन ऑफकोर्स लीप फ्रॉग फ्रॉम देयर. Second is Krishna Agarwal. Krishna Agarwal says that I'm a BBA student. First year almost over and I'm thinking to do CFA along with second year. Will it be possible? I want finance related job after my college. ठीक है. सो कृष्णा देखिए यार, एक होती है सपने और एक होती है हकीकत. आपके सपने तो बुलंद हैं कि जी आप फाइनेंस रिलेटेड जॉब लेना चाहते हैं, बट अब आपको इसको हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज अ गैप बिटवीन योर ड्रीम्स एंड योर रियलिटी. व्हाट इज अ रियलिटी? द रियलिटी इज यार दैट यू आर लेट. यू शुड नो दिस वेरी क्लियरली. मैं यहाँ आपको खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि आपको अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा. जो सच्चाई है थोड़ी कभी कभी कड़वी लगेगी, बट इट विल ड्रिल डाउन द पॉइंट. So the bigger point is that you are late. A lot of students here who prepare CFA level 1 with me, they come in their first year because CFA allows you, because CFA is a very, very practical, up-to-date institute. So it allows you to write level 1 in your second year itself and level 2 in your third year. By the time you graduate, you have 2 levels of CFA. और बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको ये अवेयरनेस होती है और वो 2 लेवल्स साथ साथ में कर लेते हैं. एंड वंस दे आर डन विद 2 लेवल्स ऑफ CFA, उनके प्रोफाइल में इतना सॉलिड ब्रांड आ जाता है कि बाकी BBA और कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, ग्रेजुएट के जो बच्चे होते हैं, उनसे वो बहुत ऊपर उठ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो आप थोड़ा लेट हैं,
बट एज दे से इन हिंदी, एक सेइंग है, जब जागो तब सवेरा। सो कृष्णा, आप लेट नहीं, अब आप ये सोचिए कि अब आप जागे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन 6 months you can very easily prepare for CFA level 1, and then in another 9 months you can very easily prepare for CFA level 2. So by the time you are done with your graduation, you can very easily still go for 2 levels of CFA. So ये करना कुछ नहीं है. I have prepared this entire CFA level 1 lecture series in a very logical, with lot of practical examples. I have explained you the entire curriculum. बहुत अच्छे से मैंने lecture series में पढ़ाया है. If you want to enroll for that lecture series, there is a link in the description. You can click on that. वहाँ आपको lecture series के related सारी information, plus you will receive lot of demo lectures and FAQs. आप go through it. If you like it, you can very easily enroll for the course and get started. My only word of advice is, Krishna, that you can very well crack 2 levels of CFA. ये बहुत highly possible है, क्योंकि मैंने जो बताया आपको कि हजारों बच्चे हमारे साथ CFA level 1 की प्रिपरेशन कर चुके हैं, and trust me, a lot of them clear their 2 levels of CFA along with graduation, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हजारों की मात्रा में खुल जाती है. अगर आप भी फाइनेंस में अपने ड्रीम को सफल होता हुआ देखना चाहते हैं, रियलिज्म में कन्वर्ट होता हुआ देखना चाहते हैं, तो फटाफट तैयारी शुरू कर दीजिए. अगर आप क्यों करना चाहते हैं CFA, क्यों फाइनेंस आपके लिए अच्छा है या नहीं है, उस कोनंड्रम में है, उस कंफ्यूजन में है, तो आप ये सही चैनल पे आप आए हैं. आप मेरे चैनल पे रहिए, एक हफ्ता निकालिए. इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, दबाकर उन सारी वीडियोस को देखिए, आपका वाई जरूर क्लियर होगा. ठीक है. ग्रेट कृष्णा, विश यू ऑल द लक. आई जस्ट होप यू गेट स्टार्टेड क्विकली. थर्ड इज सौरभ क्वेरी. यार सौरभ ने बहुत बड़ा एक क्वेरी लिख के भेजा था, तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी पे डाला और बोला कि भाई चैट जीपीटी, इनकी इतनी बड़ी क्वेरी को छोटा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इतनी. राइट. तो देखिए चैट जीपीटी ने कितना कमाल है यार. चैट जीपीटी ने, सौरभ आपकी इतनी बड़ी क्वेरी को देखिए, उन्होंने 2 लाइन में कितना अच्छा बना दिया. वाई एम टेलिंग यू दिस फ्रेंड्स इज दैट प्लीज स्टार्ट यूजिंग दिस न्यू टेक्नोलॉजी. क्योंकि समय के साथ, देखिए अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप लोग बहुत जवान है, बट समय के साथ बूढ़ा हो या जवान, अब सबको फटाफट साथ में ग्रो करना है. नहीं तो नई टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो हम पिछड़ते जाएंगे. राइट. तो सौरभ, आपकी क्वेरी है कि सौरभ उपाध्याय सीक्स करियर एडवाइस आफ्टर क्लास 12. ही इज अनश्योर बिटवीन डायरेक्ट एडमिशन और CFA विद PPA, सीक्स गाइडेंस. तो देखिए सौरभ, यू कैन डेफिनेटली यार, इफ यू आर एस्पायरिंग टू गेट इनटू एन IIM, आई विश यू ऑल द लक. अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए. बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, करियर लॉन्चर है, टाइम का इंस्टीट्यूट है. टाइम में मैंने तैयारी की थी बहुत पहले 2010 के अंदर, जब मैंने IIM इंदौर का एग्जाम क्रैक किया था. तो ये सब कैट की प्रिपरेशन कराते हैं, आप वहां से अपने IIM की तैयारी कर सकते हैं. राइट. अच्छे से प्रिपेयर करिए. अगर आपका IIM में हो जाता है तो डेफिनेटली आपको MBA में जाना चाहिए, क्योंकि IIM का जो ब्रांड है MBA का, वो बहुत स्ट्रांग है. नॉट ओनली विल इट गिव यू नॉलेज, ब्रांड, बट इट विल ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ नेटवर्किंग. आप IIM के एलुमनाई नेटवर्क, जो सीनियर्स हैं, जो आपके जूनियर्स होंगे, आपके पीयर्स होंगे, ये नेटवर्क आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटीज दिलाता है, आपके जॉब्स के लिए, आगे करियर प्रोग्रेशन के लिए, एटसेट्रा. तो वो नेटवर्क तो डेफिनेटली लेना चाहिए अगर आपका IIM में होता है. तो ये चीज तय मान लीजिए पर कि आप IIM में जाएं या IIM में ना जाएं. अगर आपको फाइनेंस में करियर बनाना है तो CFA तो करना ही पड़ेगा. इनफैक्ट टुडे almost 40-50% of students who are getting into an IIM, they already have cleared and they aspire to build their career in finance. ऐसा नहीं कि जिनको मार्केटिंग में करियर बनाना, ऑपरेशंस में बनाना है, उनके लिए नहीं बोल रहा, but the ones who want to create their career in finance, they already clear their level 1 by the time they enter the MBA college. So my word of advice is that आप IIM की तैयारी, या कैट की तैयारी होती है, IIM की तो तैयारी नहीं होती, कैट की तैयारी होती है. यू डू दैट कैट की तैयारी, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि, क्योंकि आप मॉक एग्जाम देंगे, बाकी उनके सेशंस करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका होगा कि नहीं होगा. अगर तो होने वाला है, आपको अच्छा फीलिंग आ रही है, अच्छे मॉक में एग्जाम्स में रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो दबा के उसको कीजिए. IIM का रिजल्ट आने के बाद, IIM के एडमिशन के बीच में, रिजल्ट आने से लेकर एडमिशन के बीच में 4-5 महीने का डिफरेंस रहता है. उसमें आप CFA लेवल 1 की तैयारी करिए और क्रैक करके घुसिएगा IIM के अंदर. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके IIM का तो यार सीन थोड़ा डावाडोल लग रहा है, तो आई वुड सजेस्ट यार, यू स्टार्ट प्रिपरेशन राइट नाउ, बिकॉज एज आई कीप सेइंग यार, द ब्यूटी ऑफ CFA इज कि आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप MBA के कॉलेज के अंदर हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, IIM की तैयारी कर रहे हैं, CA की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप इनको करते करते भी CFA की तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज CFA इज वेरी वेरी लॉजिकल. इनफैक्ट इफ यू टेक अप माई लेक्चर सीरीज, ऑल यू हैव टू गिव इज 90 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस, और 6 महीने में आपकी पूरी तैयारी हो जाती है. So that way, yeah, you can decide to prepare along with your current graduation or CAT preparation as well. Again, as always, yeah, the link of enrolling for the lecture series, what is there in the lecture series, demo lectures, etc. All that is there in the description. You can click there and go through it. Twice जो है
You can also comment and let us know. Okay, great. Yeah, lastly, yeah, we have Preetham. Preetham says that he's a final year law student at University of Calcutta. He's interested in finance, considering CFA charter. He is interested, his concerns. Again, I think Preetham, you had put in a very big query, so I had summarized it through ChatGPT. You have concerns about CFA sufficiency, preparation time, lack of finance background, and relevance of legal background in finance job. So, देखो Preetham, lot of people are from law are doing CFA because M&A जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की फील्ड है, M&A फील्ड, उसमें कई सारे लीगल नुआंसेस भी होते हैं, जिसकी वजह से, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल भी होती है M&A वाली. सो हेंस इफ यू हैव CFA along with your law, then your entry into M&A profiles, mergers and acquisitions profile becomes very, very easy, or it becomes more possible, right? Because M&A files are very difficult to crack. So hence, Preetham, with that, as you have asked, what would be the relevance? The relevance is because if you have CFA along with your law or legal degree, then this becomes like a deadly combination. दिस बिकम्स लाइक अ डेडली कॉम्बिनेशन. जैसे अगर आप विकेट कीपर हैं और आप अच्छी बैटिंग करते हैं तो आपकी टीम में जगह बहुत पुख्ता हो जाती है, राइट? वो हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, राइट? संजू सैमसन का एग्जांपल देखते हैं आप राजस्थान रॉयल्स में, केएल राहुल का एग्जांपल देखते हैं, धोनी का एग्जांपल देखते हैं, एक्सेट्रा. So similarly, that deadly combination in case of mergers and acquisition profile, VC profile, is that if you have law degree along with your CFA degree, then it becomes like a very, very interesting ammunition or background for you to crack these profiles. Now, as far as preparation time is concerned, here I've already answered that, right? So you need not leave anything aside. Just 90 minutes for 6 months. You can trust our course. I have taught it very, very logically with a lot of practical example. Just say today, answering your queries, I'm giving a lot of practical example. Similarly, I've explained a lot of these CFA concepts with a lot of practical example. So your preparation will become very super simple. You don't need to quit any of the things which you are doing. Instead, you can prepare that in parallel as well. Okay. As far as CFA sufficiency, I've already told you that with law and CFA, these two degrees are like a ghatak combination, right? Which will open up lot of profiles for you in the M&A and VC domain, right? So now, friends, we are about to wind up. Quickly coming to that query which I had asked, which would give you a test whether CFA is for you or not. क्योंकि मैंने बोला है CFA ना मैथ्स है, ना फाइनेंस है, ना इसमें बहुत सारी अकाउंटिंग है. CFA एक्चुअली में यार बहुत ही लॉजिकल है. एट द हार्ट ऑफ फाइनेंस इट इज़ अ लॉजिक. तो हमने एक सवाल पूछा था आपसे स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में या स्टार्ट ऑफ द सेशन में कि भाई समीर सक्सेना इज अ पर्सन, ही लिव्स इन सूरत, गुजरात, currently preparing for CFA. His phone number is something and his email ID is sameer2395@gmail.com. हमें बताना था उसका एज. अब देखिए यहाँ पर इसकी डेट ऑफ बर्थ तो दी नहीं हुई है. तो अगर आपका आज तक इंडियन माइंड्स कैसे सोचता है ना कि इंडियन माइंड्स को लगता है कि यार जो हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है या तो हमको पता है या ना पता है, राइट? बट दोस्त, फाइनेंस, खासकर एनालिटिकल फाइनेंस, is not about yes or no. It is about you predicting something in the future which may or may not be correct, but it should be logical so that the chances of it being correct is rooted in some logic. So similarly here, we are not given the date of birth of Sameer Saxena. So it is hard to say कि उसका age क्या है. But as an analyst, as a logical people, you will try to guess it. क्योंकि कल को हमें नहीं पता कि कोई कंपनी कैसा करेगी आगे जाकर, वो कितना प्रॉफिट करेगी नहीं करेगी. बट लुकिंग एट द पास्ट डेटा, लुकिंग एट द प्रेजेंट डेटा, looking at what the investors are saying, looking at what the management is saying, looking at the profile of the CEO, etc., we will try and guess what this company will do. And that is the role of an analyst. और उसी गेस पे, जैसे 2008 में आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी बिग शॉट्स, उसमें वो गेस करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में फाइनेंस का जो ये पूरा स्टॉक मार्केट है क्रैश करने वाला है बिकॉज ऑफ सब प्राइम क्राइसिस. तो जिन्होंने सही गेस किया थ्रू सम इनपुट्स, थ्रू सम इंटरव्यूज, थ्रू सम लॉजिक, दे वर एबल टू गेन लॉट ऑफ मनी. तो यहाँ पर भी आप देखिए कि समीर सक्सेना नाम पढ़ के तो इससे डेट ऑफ बर्थ निकालना बहुत मुश्किल है. सूरत गुजरात में ही लिव्स, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. यार सूरत गुजरात में साल में तो करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमें क्या पता ये समीर सक्सेना कब पैदा हुआ. अभी ये CFA प्रिपेयर कर रहा है, बहुत अच्छा बात है, इसका मतलब इसका लॉजिकल माइंड होगा, बट उससे भी डेट ऑफ बर्थ का कोई लेना देना नहीं. फोन नंबर है, फोन नंबर में भी डेट ऑफ बर्थ का कोई लेना देना नहीं होता. जब हम अपने फोन नंबर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से थोड़ी लेते हैं. एक ईमेल आईडी है जिसमें हम कुछ ढूंढ सकते हैं. और जनरली आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, ईमेल आईडी में लोग जो नंबर डालते हैं, एक याद रहे ईमेल आईडी उसके लिए और यूनिक रहे, राइट, उसके लिए वो नंबर जो डालते हैं जनरली DDMM YY फॉर्मेट में डालते हैं. तो अगर मुझे गेस लेना है कि समीर सक्सेना का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं बोलूंगा 2395, मतलब सेकेंड 2 इज DD, MM मतलब मंथ विच इज 3, तो मैं बोलूंगा शायद इसका मार्च में ये पैदा हुआ होगा. और 95 जो लास्ट में लिखा हुआ है वो शायद इसका ईयर ऑफ बर्थ होगा, इसीलिए इसने 2395 लिखा हुआ है, राइट.
क्लियर? ये एक गेस है। आप में से कुछ लोग ये भी गेस कर सकते हैं कि यार इसका डेट जो होगा वो 23 होगा, इसका जो ईयर मंथ होगा वो 9 होगा मतलब सितंबर, और इसका ईयर शायद 2005 होगा 5, राइट? वो भी एक लॉजिकल है, पर थोड़ा कम लॉजिकल है, क्योंकि अगर 5 होता तो 05 लिखता, क्योंकि 5 तो बहुत चीज़ें हो सकती है, 95, 85 कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने गेस किया, अगर मुझे गेस करना है तो मैंने बोला कि यार 95 एक सही ईयर लग रहा है, क्योंकि जनरली लोग 2 डिजिट से ईयर स्पेसिफाई करते हैं, राइट? तो 2395 अगर मुझे गेस करना है तो मैं बोलूँगा इसका डेट ऑफ बर्थ है 95, राइट? 2 मार्च 95। अभी हम 24 में बैठे हैं, तो मोटा-मोटा 95 से 2005 10 साल, 2005 से 2015 20 साल, और उसके बाद 2015 टू 2024, राइट? आपका 9 साल, तो मे बी हिज एज इज 29। समझ में आ रहा है दोस्त? तो ये देखिए, ये एक लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है। अगर आपने भी कुछ इसी के अराउंड गेस किया था, तो आप मान कर चलिए आपका लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है। अगर आपने ये बोला सॉरी सर नहीं पता, तो ये जो नहीं पता वाला एटीट्यूड है ना, ये तो एनालिस्ट का एटीट्यूड ही नहीं है। तो फॉरगेट अबाउट आपकी मैथ्स है कि अकाउंटिंग है कि इकोनॉमिक्स है कि कुछ और है। फाइनेंस फिर शायद आपको कठिन लगेगा या शायद आपके लिए नहीं। ठीक है दोस्त? तो आई होप दिस थर्ड थिंग वाज सुप्रीमली एक्साइटिंग फॉर यू टू ऑब्जेक्टिवली गेज कि यार सीएफए आपका जो लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है उसको ला पा रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर आपने तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया, सर लड़के का नाम भी बता दिया, उसका सिटी भी बता दिया, गुजरात भी बता दिया, सीएफए प्रिपेयर कर रहा है वो बता दिया, कुछ फोन नंबर बता दिया, तो इतना सारा एम्बिग्यूअस रिडंडेंट डेटा क्यों दिया सर? जो यूज ही नहीं होना था वो क्यों आपने दिया? तो दोस्त, दिस इज हाउ फाइनेंस इज। फाइनेंस की दुनिया में जब आप रिसर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारा डेटा एक पॉइंट पे आ रहा होगा। इन्वेस्टर्स विल से समथिंग, your management would say something, right? Some other government is saying something about this company. You have to make a sense of what is noise and what is signal. मतलब क्या रिडंडेंट डेटा है, जैसे यहाँ नाम था, शेयर था, स्टेट था, सीएफए प्रिपेयर कर रहा है, फोन नंबर था, राइट? और क्या रेलिवेंट डेटा है जिसको हम सिग्नल बोलते हैं, जैसे यहाँ पर वो ईमेल आईडी रेलिवेंट डेटा था। ये हमारे इंडियन एग्जाम की तरह नहीं है दोस्त, कि जो है खाली जो डेटा में फॉर्मूला में जो नंबर लगेंगे वही दे दिया है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स दे दिया, मास दे दिया, एक्सेलरेशन निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं, ना ही इस तरह की आपका फाइनेंस की दुनिया होती। इन फैक्ट यू विल सी दिस रिफ्लेक्टिंग इन द सीएफए एग्जाम एज वेल। In the CFA exam, all your questions will have a lot of redundant data because they are trying to see if, as an analytical bent of mind, would you be able to sift out. Sift अंग्रेजी word है SIFT. Sift out means remove the noise and pick up the signal. Okay, so friends, you would have got a very very practical example from this, right? I hope you liked it. If you liked it, आप में से जिनको जिनको right हुआ, आप प्लीज जो है yes करके जो है, या thumbs up देकर डिस्क्रिप्शन में +1 देकर जो है डिस्क्रिप्शन में जरूर कमेंट करें, कमेंट करें इस वीडियो के लिंक में। Also, please share it with your friends and see if they are able to guess it, right? And if you have been able to guess it, then you are on the right track and CFA is fine, right? So friends, that's it for today. In case you too have any queries, please do click on the first comment in the of the video. There we have the free CFA mentorship form, or you can go through the description. There also this form is there. You can put in your query here, and in the future videos, I will answer your queries. So thank you so much, friends. I will see you in yet another exciting video in some days. Till then, keep shining and keep learning. Bye-bye.